Hello to all the TYBSc microbiology students. Welcome to the another video lecture of yours. So in the last lecture we have learnt about the agglutination. What is agglutination, then how it takes place, then along with that we have also learnt about the agglutination reaction such that hemagglutination, as well as we have seen the agglutination inhibition reaction. Okay, in the hemagglutination we have learnt how to detect the blood group using the agglutination phenomenon. Then we have also seen that agglutination can be also used for the detection of the pregnancy. Okay, we can detect the pregnancy also, but there we have seen the exact opposite case of the agglutination. When the agglutination is absent, then it is indicated as a positive test, while when the agglutination is present, it is indicated as a negative test in the case of agglutination inhibition reaction. Okay, so along with that we have also seen that how the agglutination takes place, that when the antigen and the antibodies come in the close proximity. Okay, and the important thing is that when the antigen is in the particulate form, or it is in the larger scale form, or it is having a large size as compared to the normal antigens, okay, there only we can observe the phenomenon, that is the agglutination. Otherwise we know if the antigen is soluble, then we get to observe the precipitation, which is not very much hard clumping. Okay, clumping when gets to form when the antigen is very much of large size and is very much of we can say of a greater scale as compared to the precipitation reaction, where the antigen doesn't need to be very much large in size, or it doesn't need to be very much of visible in format. It just happens very we can say very small scale. That's why we observe the precipitation. Okay, so now the agglutination reaction has different types, and we can also use it for the detection of the different antigens, antibodies, and also for the detection of the pregnancy, also the detection of the blood group. We can use this agglutination phenomenon in the wide range of fields. Okay, so now we are going to see the one more very simple type of the agglutination reaction, that is the passive type of the agglutination reaction. Okay, it is also known as indirect type of the agglutination reaction. In the last lecture we have also seen that how the agglutination reactions can be performed on the slide and also on the tube. Okay, now here we are going to see the passive kind of the agglutination. Okay, so if you talk about the direct type of the agglutination, if we talk about the active type of the agglutination and particularly the bacterial agglutination, we know कि वो जो एंटीजन है या वो जो एपिटोप है जो एक्चुअली इम्यूनोजेनिक है, जो एक्चुअली अग्लूटिनेशन करने वाला है, वो किसी लार्जर पार्टिकल पे प्रेजेंट है ऑलरेडी. फिर वो लार्जर पार्टिकल कैन बी द आरपीसी, इट कैन बी द एनी टाइप ऑफ द बैक्टीरियल सेल. ओके, इट कैन ऑल्सो बी अ पैरासाइट इटसेल्फ. उसके ऊपर वो एपिटोप प्रेजेंट है, उसके ऊपर वो एंटीजन प्रेजेंट है. ओके, एंटीजन क्या है? एक एपिटोप है. एपिटोप किस पे प्रेजेंट है? बैक्टीरियल सेल पे. ओके, हमें उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं. हम आयता या वी कैन से हम डायरेक्टली बैक्टीरिया लेंगे, उस पर जो है एपिटोप्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमें किसी को ज्वाइनिंग करने की ज़रूरत होती नहीं, तो डायरेक्टली हम बैक्टीरिया को देंगे और इसको रिएक्शन करने के लिए छोड़ देंगे. और फिर अग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हुआ, मतलब क्या कि वो इंसान या वो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दैट एंड दैट टाइप ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके, हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं. बट अगर कोई एंटीजन है, ओके, हमारे पास कोई एंटीजन है या कोई इन्फेक्शन करने वाला वायरस है या कोई फैक्टर है, ओके, टॉक्सिन है, ओके, कोई टॉक्सिन है, लेकिन वो अब टॉक्सिन हो या कोई फैक्टर हो तो वो बहुत स्मॉल वी कैन से साइज़ में होता है. ठीक है, और आपको पता है अगर वो जो एंटीजन है वो अगर सोल्यूबल फॉर्म में हो या नॉन पार्टिकुलेट फॉर्म में हो या वेरी स्मॉल साइज़ में हो, तो क्या किया जाता है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है. वहाँ पे जो लैटिस फॉर्मेशन होता है वो क्लम्पिंग नहीं देता, वो छोटे छोटे फ्लॉक्यूलेशन देता है या फिर वो छोटे छोटे जो है प्रेसिपिटेशन देता है. ओके, दैट्स वाई हमें क्लियरली उसको इतना इतना बड़ा क्लम्पिंग जैसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व नहीं हो पाता. तो अभी अगर हमारे पास वैसा एंटीजन है जो बहुत छोटा है, स्मॉल इन साइज है, वी कैन से इट इज़ इन द सोल्यूबल फॉर्म, देन व्हाट टू डू.
क्या कर सकते हैं हम वहाँ पे, तो वहाँ पे आप कर सकते हो पैसिव अग्लूटिनेशन। ओके, तो इसका नाम क्या है, पैसिव अग्लूटिनेशन। मतलब क्या कि वहाँ पे हम कुछ पैसिव प्रोसेस करने वाले। अब एक्टिव की अगर हम बात करें, एक्टिव मतलब क्या, जहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसिव मतलब क्या, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पैसिव में क्या किया जाता है, जनरली एंटीजन जो होता है वो इट इज़ इन द सोल्यूबल फॉर्म, इट इज़ इन द नॉन पार्टिकुलेट फॉर्म, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट है फ्लूइड में। तो अब उसका क्या किया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक तो कोई प्रोसेसेस करके आरबीसी पे बाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे आरबीसी पे बाइंड कर सकते हो, या तो फिर हम एक चीज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम किसी लैटेक्स, किसी बीड्स पे, जो ग्लास बीड्स होती है उस पे हम उस एंटीजन को क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो इसको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द अग्लूटिनेशन। इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एंटीजन है वो बहुत छोटा साइज़ का है, हम इसको यूज़ करके अग्लूटिनेशन टेस्ट नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमें उसको लार्ज मॉलिक्यूल पे क्या करना है, उसको बाइंड करना है, सो दैट कि वो अच्छे से बाइंड हो जाए और वो जो है अग्लूटिनेशन कर पाए। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एंटीजन इज फिक्स्ड टू अ सॉलिड सरफेस। अब यहाँ पे ये जनरली अगेन द सेम थिंग, वही रिएक्शन आपको करनी है। आप जैसे स्लाइड टेस्ट और ट्यूब टेस्ट में करते हो वैसा ही आपको करना है। बैक्टीरियल सस्पेंशन लेना है, सलाइन लेना है, उसमें बैक्टीरियल सस्पेंशन डालना है, या फिर जो भी टॉक्सिन का सस्पेंशन है, जो भी एंटीजन का सस्पेंशन है वो डालना है आपको। और उसके बाद आपको क्या डालना है, पेशेंट का ब्लड डालना है या पेशेंट का सीरम डालना है। ठीक है, और सीरम डालने के बाद ऑब्वियस सी बात है, अगर उस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो वो अग्लूटिनेशन शो करेगा, अगर नहीं हुआ है तो वो नहीं शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी क्लियरली। ओके, यहाँ पे यू कैन सी अगर उसमें इन्फेक्शन है तो देयर कैन बी द फॉर्मेशन ऑफ द क्लम्पिंग। ओके, क्लॉट्स फॉर्म कर सकता है, क्लम्पिंग फॉर्म हो सकती है। देन वी कैन से दैट इट इज़ अ पॉजिटिव काइंड ऑफ अ रिएक्शन। ओके, ये पॉजिटिव रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लम्पिंग, ओके सॉरी, यहाँ पे आपको क्लम्पिंग नहीं दिख रहे इन दिस फिगर। ओके, वी कांट सी एनी टाइप ऑफ द क्लम्पिंग, दैट्स वाई इट इज़ अ निगेटिव टेस्ट। तो सेम टेस्ट है, बट यहाँ पे क्या किया जाता है, उस जो वी कैन से उस एंटीजन को जो सोल्यूबल फॉर्म में या स्मॉल साइज में उसको वी कैन से उसको प्लेस किया जाता है, उसको बाइंड किया जाता है। किस पे बाइंड किया जाता है, किस पे प्लेस किया जाता है, किससे अटैच किया जाता है, टू दी लार्जर कैरियर मॉलिक्यूल्स। कैरियर कौन से हो सकते हैं, वो आरबीसीज हो सकते हैं, लैटेक्स हो सकते हैं, जेलेटिन हो सकता है, चारकोल भी हो सकता है, बेंटोनाइट हो सकता है। कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल है उस पर आपको क्या करना है, इसको इमोबलाइज करना है, उसको बाइंड करना है। ठीक है, और ये जो है ये विडाल टेस्ट नाम के टाइफॉइड के सैल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन को डिटेक्शन करने के लिए हेल्प करता है ये फिनोमेनॉन, एज वेल एज फॉर द लिप्टोस्पायरोसिस। ओके, लिप्टोस्पायरोसिस जो डिसीज़ है उसके लिए भी आपको ये टेस्ट कर सकते हैं आप। देन जो कैरियर्स हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं वो कैरियर, मतलब क्या, क्योंकि मैंने क्या बताया यहाँ पे पैसिव में, दैट द एंटीजन इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, वो सोल्यूबल फॉर्म में है, इसकी वजह से क्या डिसएडवांटेज आता है यहाँ पे कि वो अग्लूटिनेट नहीं हो पाते या वो अग्लूटिनेट नहीं कर पाता। किसको, पेशेंट के सीरम में जो एंटीबॉडीज़ है उसको अग्लूटिनेट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसकी वजह से हमें उसको कुछ कैरियर देना है, कुछ सपोर्ट देना है, ताकि क्या करे, वो अग्लूटिनेट कर पाए। किसको अग्लूटिनेट करना है, पेशेंट के सीरम में जो एंटीबॉडीज़ है उसको इसको अग्लूटिनेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पेशेंट के सीरम लेंगे। पेशेंट के सीरम में क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे लग रहा है वो सिम्टोमेटिक है, उसमें सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के सिम्टम्स है, तो ऑब्वियसली उसको वो डिसीज़ हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है उसको डिसीज़ हुआ है, लेकिन मुझे कंफर्मेशन करना है। तो मैंने क्या किया, वो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की एंड जो इन्फेक्शन हुआ पेशेंट है उसका ब्लड सीरम लिया। सीरम में ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है, सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब क्या, उसके सीरम में क्या होगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी। तो वो एंटीबॉडीज़ मुझे क्या करनी है, एंटीबॉडीज़ लेनी है या फिर वो सीरम लेना है
फिर उसको मैंने सीरियली डाइल्यूट किया। उसके बाद ये जो मैंने लैटेक्स को बाइंड करके जो एंटीजन बनाया है सैल्मोनेला टाइफी का जो भी टॉक्सॉइड है वो मैंने किस पे बाइंड कर लिया, लैटेक्स पे बाइंड कर लिया या फिर आरबीसी पे बाइंड कर लिया, और वो आरबीसी का एक इक्वल वॉल्यूम सभी ट्यूब्स में डाल दिया, ठीक है। और अब मैंने उसको इंक्यूबेट होने दिया। अब जहाँ पे भी अग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हुआ दैट विल बी द टाइटर, और अगर कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है अग्लूटिनेशन तो इससे मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि उस पेशेंट में कोई भी सिम्टम्स होने के बावजूद भी उस पेशेंट में डिसीज़ नहीं है टाइफीम्यूरियम का, ठीक है, तो वो कोई और डिसीज़ हो सकता है। तो ऐसा प्रेडिक्ट अगर मुझे करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, पैसिव अग्लूटिनेशन टेस्ट भी कर सकती हूँ अदर दैन दी एक्टिव अग्लूटिनेशन टेस्ट। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। इसके साथ आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, जो डायरेक्ट अग्लूटिनेशन होता है, डायरेक्ट अग्लूटिनेशन का आपको जो क्वेश्चन आता है इट विल बी ऑन द बैक्टीरियल अग्लूटिनेशन। ओके, बैक्टीरियल में अग्लूटिनेशन, बैक्टीरिया का यूज़ करके आप कैसे अग्लूटिनेशन कर सकते हो, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, वही आपको टेस्ट करनी है, बस जो इपिटोप है या फिर जो एंटीजन है जो एक्चुअली इन्फेक्शन कॉज करता है, वो एंटीजन थोड़ा छोटा साइज़ का है या फिर वो इज़ नॉट इनसोल्यूबल फॉर्मेट। अब सोल्यूबल है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी क्या है कि सोल्यूबल है मतलब वो अभी अग्लूटिनेशन नहीं कर पाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है, हमें उसको किसी कैरियर मॉलिक्यूल पे बाइंड करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से अग्लूटिनेट हो पाए, ठीक है। तो ओनली थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट कि दैट एंटीजन इज़ माउंटेड और बाइंडेड टू व्हाट, द कैरियर मॉलिक्यूल। फिर कैरियर कौन से हो सकते हैं, लैटेक्स हो सकता है, चारकोल हो सकता है, देन देयर कैन ऑल्सो बी द आरबीसी भी हो सकते हैं, ठीक है। आरबीसी पे कुछ केमिकल का रिएक्शन करके भी उस पे एंटीजन को बाइंड किया जा सकता है, चारकोल पे भी किया जा सकता है, लैटेक्स पे भी किया जा सकता है, ठीक है। लैटेक्स पे आजकल जनरली किया जाता है क्योंकि क्या है कि लैटेक्स पे जो एंटीजन बाइंड होता है वो स्टेबल रहता है, उस पर ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होता किसी चीज़ का, और वो अच्छे से अग्लूटिनेट हो पाता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली हो पाता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ जनरली यूज नाउअडेज। ओके, तो ये होती है passive type of agglutination reaction. Okay, so I hope you have understood this lecture, and if you find any query or any problem related to this lecture, please feel free to contact with me. Okay, and please do comment your attendance in the comment section below and do attend all the lectures. Okay, your attendance is compulsory. Thank you.